हाँ बेटा, कौन कौन आ गए? चार्ट तो ओपन कर देते हैं अभी। दिव्या राठौर, भूमिका यादव, मुस्कान चौधरी, निशा बागड़ी, हिनल जोशी, कृष्णा भगत। तो अपन देख रहे थे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई। So first of all, we will talk about the harmful activities of the fungi in English. So as causal agents of diseases. So fungi cause diseases in plants, animals, and human beings, and spoilage of valuable items, causing economic losses. Now I will talk about the plant diseases caused by fungi. So fungi cause diseases in many crops, causing loss of crores of rupees. Some important diseases are cereal smut, cereal rust, late blight of potato. So cereal smut is caused by the species of Astrelago. So species of Astrelago fungus cause smut disease in wheat, barley, maize, and it causes restriction of about 30% to 50% crop. So cereal smut, it is a disease. Smut is a disease. मतलब cereal smut, the causal organism of cereal smut is Astrelago. So the species of Astrelago cause smut disease in wheat, barley, maize, and then cereal rust. Cereal rust. So various species of Puccinia. Various species of Puccinia cause rust disease in wheat, barley, etc., causing economic losses. Causing economic losses. So then there's a late blight of potato. Late blight of potato disease. So this disease, late blight of potato, is caused by the fungus Phytophthora infestans, which results in destruction of potato crop within short time during aggressive heavy infection. Then we'll talk about the wilts of the crop plants. So the affected plants die due to the wilting. The disease is caused by many fungi, but Fusarium species are the most important pathogens, and the important affected crops are cotton, arhar, tomato, pea, etc. So what are the plant diseases caused by fungus? तो आपको प्लांट डिजीजेस और फंगस का नाम याद रखना पड़ेगा. एक है वाट डिजीज, WART. वाट डिजीज is caused by the fungus Synchytrium endobioticum. Synchytrium endobioticum. Next है late blight disease is caused by the fungus Phytophthora infestans. Then white rust disease is caused by Albuco candida. Then downy mildew disease is caused by the fungus Perinospora species. And green ear disease of bajra. Green ear disease of bajra is caused by the fungus Sclerospora graminicola. Sclerospora graminicola. बस मेरे पर जंट लगा दो. कौन बोल रहे हैं? मंजू. मंजू लगा दी बेटा. हाँ, पाउडरी मिल्ड्यू. मनीषा खारबास. मनीषा रेगर लगा दी. मनीषा खारबास की भी लगा दी कि बेटा. हाँ, powdery mildew disease is caused by Iricidae graminis. Iricidae graminis. Similarly, ergot disease is caused by the fungus Claviceps microcephala. Black rust disease of fungus is caused by Puccinia graminis, and the loose smut disease is caused by Astrelago titici, and the covered smut disease is caused by Astrelago hordi. है ना, Astrelago. Covered smut is caused by Astrelago hordi, और flag smut disease is caused by fungus Urocystis titici. Similarly, smut disease is also caused by Toliposporium penicilliari. Toliposporium penicilliari fungus. Early blight disease is caused by Alternaria solani, and the ticca disease of groundnut is caused by Sarcospora personata. Similarly, red rot disease is caused by Coleotrichum falcatum. तो एक स्लाइड में हिंदी में भी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ. आप लोग आ गए हैं ज्यादा तो शेयर कर देते हैं हिंदी में. एक स्लाइड आपके साथ शेयर कर रही हूँ. देखना, अपन डिजीज की बात कर रहे थे तो अपन करेंगे डिकम्पोजिशन ऑफ द
ऑर्गेनिक मैटर। कल किसकी बात कर रहे थे? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई। अब अपन आते हैं मैटर पे, मतलब ये भी आपको बता दिया, डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, ये वाली बात हो गई थी अपने। हाँ, ये देखना बेटा, कार्बनिक पदार्थों का अपघटन, डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर और स्कैवेंजर्स। तो अनेक कवक प्रजातियों, मृत सजीव शरीरों या उनसे उत्पन्न जटिल कार्बनिक उत्पादों को अपघटित करके, डिकम्पोज करके उनको सरल अकार्बनिक उत्पादों में परिवर्तित कर देती हैं। तो इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि सजीव इकाइयों की मृत्यु के पश्चात इनके मृत शरीर अपने आप ही विघटित नहीं हो पाते, बल्कि इनके अपघटन में दूसरे जीव समूहों के अतिरिक्त विभिन्न कवक सदस्यों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि हमारी पृथ्वी पर कवक एवं बीजाणु मौजूद नहीं होते तो इस धरती पर मलबे का ढेर लग जाता तथा मनुष्यों के रहने के लिए स्थान की कमी पड़ जाती। तो अनेक मृतोपजीवी कवक जैसे पेनिसिलियम, एस्परजिलस, पाइलोबोलस, पॉलीपोरस इत्यादि मृत कार्बनिक अवशेषों का अपघटन करके इनको ह्यूमस में बदल देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जमीन का उपजाऊपन बढ़ जाता है और अनेक जीवाणुओं से, बैक्टीरिया से उत्पन्न अम्लों के कारण जब भूमि में अम्लीयता की मात्रा बढ़ने लगती है तो ऐसी जमीन में खनिज संतुलन स्थापित करने का कार्य कवकों द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं कवक मूल माइकोराइजा। तो यह एक प्रकार का सहजीवी गठबंधन है जिसमें कवक शरीर मतलब कवक जाल या कवक का माइसीलियम तथा उच्च वर्गीय पौधों की जड़ों के बीच एक विशेष प्रकार का अटूट संबंध बन जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप कवक जाल को पौधे से भोजन एवं आश्रय प्राप्त हो जाता है, जबकि उच्च वर्गीय पौधे के लिए कवक तंतु जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करते हैं। साथ ही इनकी जड़ों के आसपास एक विशेष प्रकार का रक्षात्मक आवरण निर्मित करते हैं। तो अनेक उच्च वर्गीय पादप प्रजातियों जैसे पाइनस, लाइकोपोडियम के सफलतापूर्वक जीवन यापन एवं दीर्घ जीविता के लिए इनमें कवक मूल गठबंधन माइकोराइजा की उपस्थिति आवश्यक होती है। अब बात करते हैं हार्मफुल एक्टिविटीज, मतलब कवक की जब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो उसमें दोनों आएंगी बेटा, बेनिफिशियल एक्टिविटीज एज वेल एज हार्मफुल एक्टिविटीज ऑफ द फंगस। तो अपन पढ़ते हैं कि हानिकारक गतिविधियां तो कौन कौन सी हैं। तो अपन बात करते हैं विभिन्न कवक प्रजातियों की उपस्थिति एवं सक्रियता मानव समाज के लिए नुकसानदायक साबित हुई है। और कुछ उदाहरण हैं जैसे कि है बेटा रोगकारी कवक, डिजीज कॉजिंग फंजाई, मतलब कौन से ऐसे कवक हैं जो रोग फैलाते हैं। तो अनेक कवक प्रजातियां मनुष्यों, उसके पालतू पशुओं व उपयोगी कृषि पौधों को संक्रमित कर इनमें रोग उत्पन्न करती हैं तथा इस प्रकार से भारी नुकसान पहुंचाती हैं। तो पहले बात करते हैं कौन कौन से पादप रोग हैं जो कि कवकों के द्वारा होते हैं। तो अनेक परजीवी एवं मृतोपजीवी कवक पौधों में विभिन्न प्रकार के रोगों का संक्रमण करते हैं, जिससे प्रति वर्ष करोड़ों रुपए की हानि होती है। तो प्रमुख पादप रोग निम्न प्रकार हैं। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं? प्लांट डिजीज की और रोगकारी फंगस की। तो ये आपको याद रखना है कि सफेद किट रोग, व्हाइट रस्ट रोग किस कवक के मारे होता है? तो कवक है एल्ब्यूगो कैंडिडा। व्हाइट रस्ट पादप रोग किसके द्वारा होता है? एक कवक है एल्ब्यूगो कैंडिडा। इसी प्रकार डाउडी मिल्ड्यू ऑफ मस्टर्ड, सरसों का मृदु रोमिल रोग कौन सी फंगस के कारण होता है? तो फंगस का नाम है पेरिनोस्पोरा
पैरासिटिका। और आलू, आलू का व्हाट रोग, आलू का व्हाट रोग मतलब व्हाट डिजीज ऑफ पोटैटो किसके कारण होता है, कवक का नाम क्या है, कवक का नाम है सिनकाइट्रियम, सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम। और एक है बाजरे का हरित बाली रोग, ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा किसके कारण होता है, स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला के कारण होता है। इसी प्रकार रस्ट डिजीज मतलब किट रोग किसके कारण होता है, पक्सिनिया की विभिन्न प्रजातियों के द्वारा होता है। तो अपन ने क्या बात करी, कुछ ऐसे कवक हैं जो कि पादप पर रोग फैलाते हैं, जैसे कि सफेद किट रोग, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स, तो किसके द्वारा होता है, कवक का नाम है एल्ब्यूगो कैंडिडा। इसी प्रकार आलू का वाट या मस्सा रोग, वाट डिजीज ऑफ पोटैटो किस कवक के मारे होता है, सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम। इसी प्रकार बाजरे का हरित बाली रोग, ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा कौन सी कवक फैलाती है, कौन सी फंगस फैलाती है, तो फंगस का नाम याद रखोगे स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला। इसी प्रकार किट रोग, किट रोग रस्ट डिजीज कौन फैलाता है, पक्सिनिया। इसी प्रकार बात करते हैं पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ पी, मटर की चूर्निल आसिता, रोग का नाम क्या है, डिजीज का नाम है पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ पी, इसको कौन फैलाता है, एरिसाइफी या इरिसाइफी पॉलीगोनाई नामक फंगस फैलाती है। इसी प्रकार स्मट डिजीज जिसको आप कड़ुआ रोग भी कहते हो, स्मट डिजीज कड़ुआ रोग कौन फैलाता है, अस्ट्रिलेगो, अस्ट्रिलेगो भी क्या है, फंगस है, अस्ट्रिलेगो फैलाती है। इसी प्रकार बेटा अर्गट डिजीज ऑफ बाजरा, बाजरे का अर्गट रोग, रोग कौन फैलाता है, कवक का नाम क्या है, कवक का नाम है क्लेविसेप्स, क्लेविसेप्स माइक्रोसिफेला। और इसी प्रकार रेड रॉट ऑफ शुगर केन, गन्ने की लाल सड़न रोग कौन फैलाता है, तो कवक का नाम है कॉलिटोट्राइकम फेल्केटम, कॉलिटोट्राइकम फेल्केटम। इसी प्रकार मूंगफली का टिक्का रोग कौन सी कवक फैलाती है, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट इज कॉज्ड बाय सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। सो आपको ये सब रोग के नाम और कवक के नाम याद रखने हैं। जैसे कि बताया मैंने स्मट डिजीज मतलब कंडुआ रोग कौन सी फंगस फैलाती है, अस्ट्रिलेगो फंगस फैलाती है, मतलब स्मट डिजीज इन प्लांट्स इज कॉज्ड बाय द फंगस अस्ट्रिलेगो एंड द अर्गट डिजीज ऑफ बाजरा इज कॉज्ड बाय द फंगस क्लेविसेप्स माइक्रोसिफेला, मतलब बाजरे का अर्गट रोग क्लेविसेप्स माइक्रोसिफेला के द्वारा फैलता है। इसी प्रकार रेड रॉट ऑफ शुगर केन इज स्प्रेड बाय द फंगस कॉलिटोट्राइकम फेल्केटम, गन्ने की लाल सड़न रोग कॉलिटोट्राइकम फेल्केटम नामक फंगस के द्वारा होता है। इसी प्रकार टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट इज कॉज्ड बाय द फंगस सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा, मूंगफली का टिक्का रोग सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा नामक फंगस के द्वारा होता है। अब अपन पढ़ते हैं फंगल डिजीजेस ऑफ मेन एंड एनिमल्स, मनुष्य तथा पशुओं में कवक रोग। तो विभिन्न कवक प्रजातियां पशुओं एवं मनुष्यों में संक्रमण कर अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करती है। इनमें से कुछ रोग घातक सिद्ध हो सकते हैं। तो मनुष्यों एवं पशुओं में कवक जनित रोगों को माइकोसिस कहते हैं और प्रमुख कवक जनित रोग निम्न प्रकार से हैं। तो अपन पहले बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज वर्ग के सदस्य एस्परजिलस की कुछ प्रजातियां एस्परजिलोसिस नामक एक गंभीर रोग होता है। मतलब एस्परजिलस है तो एस्परजिलस फंगस की कुछ प्रजातियां कौन सा रोग फैलाती है, एस्परजिलोसिस नामक गंभीर डिजीज फैलाती हैं। और एस्परजिलोसिस के संक्रमण इस रोग के मतलब एस्परजिलोसिस रोग के संक्रमण में त्वचा, कान एवं विशेषकर फेफड़े सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। तो फेफड़ों लंग्स के संक्रमण के कारण कई बार इस रोग के लक्षण मतलब एस्परजिलोसिस
रोग के लक्षण ट्यूबरक्यूलोसिस क्षय रोग के समान दिखाई पड़ते हैं। तो क्या बात कर रहे हैं, फेफड़ों के संक्रमण के कारण कई बार एस्परजिलोसिस रोग के लक्षण क्षय रोग ट्यूबरक्यूलोसिस के समान दिखाई पड़ते हैं। और इस रोग को फैलाने वाली प्रमुख जातियों में कौन सी है, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस एंड एस्परजिलस फ्लेवस के नाम उल्लेखनीय हैं। तो वी विल से एस्परजिलस फ्यूमिगेटस एंड एस्परजिलस fumigatus and aspergillus flavus. They spread the disease called as aspergillosis in human beings, and the lungs are infected because of the aspergillosis. Next बात करते हैं ब्लास्टोमाइकोसिस। ब्लास्टोमाइकोसिस नामक मानव एवं पशु रोग, ब्लास्टोमाइकोसिस नामक मानव एवं पशु रोग ईस्ट के समान एक कवक क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस द्वारा उत्पन्न होती है। इसका सर्वाधिक दुष्प्रभाव त्वचा, स्किन एवं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है। इसी प्रकार एक फंगस है, इसका नाम है ट्राइकोफाइटोन नामक कवक द्वारा रिंगवॉर्म नामक रोग होता है। तो ringworm disease is caused by the fungus ट्राइकोफाइटोन। एंड मनुष्यों एवं पशुओं की सलेष्मा झिल्लियों में पाए जाने वाले कवक कैंडिडा एल्बिकेंस के संक्रमण से कैंडिडियंसिस नामक रोग होता है। इसमें त्वचा, मुंह, श्वास नली एवं बाधा जन्नांग सर्वाधिक संक्रमित होते हैं। मतलब मनुष्यों एवं पशुओं की सलेष्मा झिल्लियों में पाए जाने वाले कवक कैंडिडा एल्बिकेंस के संक्रमण से कैंडिडियंसिस नामक रोग होता है। इसी प्रकार अपन देखते हैं कॉक्सीडियोडिस नामक कवक के संक्रमण द्वारा मनुष्यों में कॉक्सीडियोमाइकोसिस नामक रोग उत्पन्न होता है। मतलब coccidioidomycosis disease is caused in human beings by the fungus coccidioides। एंड इस रोग में कौन से वाले रोग में कॉक्सीडियोमाइकोसिस नामक रोग में ऊपरी श्वसन नली तथा फेफड़े लंग्स क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, वे इनमें घाव बन जाते हैं। तो गंभीर संक्रमण की अवस्था में शरीर के अन्य भाग भी प्रभावित हो जाते हैं। अब बात करते हैं स्पॉइलेज ऑफ फूड मटेरियल्स। तो कुछ इंग्लिश में बता देती हूँ मैं। स्पॉइलेज ऑफ फूड मटेरियल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बता रही थी मैं, फंगल डिजीजेस ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। तो द डिजीजेस कॉज्ड बाय द फंजाई आर कॉल्ड एज माइकोसिस। मतलब the diseases which are caused by the fungi are called as mycosis, and some diseases are aspergillosis. Disease का नाम क्या है, aspergillosis. This disease aspergillosis is caused by aspergillus species, mainly by aspergillus fumigatus and aspergillus flavus in lungs, skin and ears. So the lungs, skin and ears are affected in the disease aspergillosis, and this disease aspergillosis is caused by the fungus aspergillus, and the species are aspergillus fumigatus and aspergillus flavus. The symptoms in lung disease are similar to tuberculosis. Next we talk about the coccidioidomycosis. This is a disease caused by the fungus coccidioides, causing wound in lungs and trachea. Then कौन सी बीमारी है, रोग है कैंडिडियासिस। कौन सी बीमारी है, कैंडिडियासिस। This disease is caused by the fungus Candida albicans, which infects the lung skin buccal cavity. मतलब कैंडिडा
albicans, which is a fungus. It infects the skin, buccal cavity, windpipe, lungs, and female reproductive organs, causing the disease. So just now we have talked about the harmful activities of the fungus. So मैंने क्या बताया था आपको कि जो स्पॉयलेज ऑफ फूड मटेरियल्स अभी बाद में बात कर लेंगे, पहले इंग्लिश में बताते हैं ब्लास्टोमाइकोसिस। एक डिजीज और क्या है ब्लास्टोमाइकोसिस? इट इज ए डिजीज इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स affecting the skin and central nervous system. So the blastomycosis disease is caused by a fungus. This blastomycosis disease is caused by a fungus. अपन अभी बात कर लेते हैं blastomycosis disease. Blastomycosis disease is caused by the fungus Cryptococcus. Fungus Cryptococcus neoformans. Fungus Cryptococcus neoformans. अब बात करते हैं स्पॉइलेज ऑफ फूड स्टफ्स, खाद्य पदार्थों का बिगड़ना। तो अनेक कवक प्रजातियों द्वारा विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ जैसे दूध, दही, मक्खन, पनीर, मांस, मछली, डबल रोटी, ब्रेड, फल, दाल, अनाज इत्यादि का संदूषण इत्यादि का कंडेमनेशन कर दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ये पदार्थ खाने योग्य नहीं रहते एवं बेकार हो जाते हैं। तो कुछ कवक जैसे पेनिसिलियम, क्लेडोस्पोरियम और ओइडियम की प्रजातियां मांस व मछली को संदूषित कर देती हैं और राइजोपस एवं म्यूकर हिमशीत मांस मछली में काला दाग नामक खराबी पैदा करते हैं। नेक्स्ट अपन स्पॉइलेज ऑफ फूड स्टफ्स ले रहे हैं, तो यही देखते जाओ। पेनिसिलियम कौन सी फंगस है? पेनिसिलियम। दूसरी फंगस है राइजोपस नाइग्रिकेंस एवं ईस्ट के द्वारा साग सब्जियां सड़ जाती हैं, वह खाने योग्य नहीं रहती। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पॉइलेज ऑफ फूड। वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पॉइलेज ऑफ फूड। तो अपन देखते हैं स्पॉइलेज ऑफ फूड, वेरियस टाइप्स ऑफ फूड मटेरियल्स लाइक डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, कर्ड, बटर, cheese, bread, meat, fish, fruits, pulses, grains get spoiled by the fungi. So milk and milk products are rendered useless by Oidium, Aspergillus, and Mucor. So what is Oidium, Aspergillus, and Mucor? These are the fungi, or Oidium, Aspergillus, and Mucor fungi. They spoil the milk. So the important fungus spoiling cheese is Geotrichum, one of the fungus which spoils the. मैम टॉपिक हमको मिला ही नहीं, आप जो पढ़ा रहे हो। Geotrichum. हाँ बेटा, क्या नहीं मिला? मैम टॉपिक नहीं मिल रहा हमको। कौन से? तो इंग्लिश मीडियम वाले बोल रहे हो, हिंदी मीडियम वाले? इंग्लिश मीडियम वाले। तो बेटा आपके पास कौन सी बुक है? मेरे पास सीबीएस है, सीबीएच है आपके पास? यस मैम। तो बेटे सीबीएच में खोल लो, अगर बुक है तो, नहीं तो मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी, ठीक है? सीबीएच में आपके पास जब बुक है तो आई टेल यू द टॉपिक इकोनॉमिक एंड बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई 16.7। आप 170 पेज खोलो, मेरे पास जो पेज है वो 170 है बेटा, इतना मैं बता सकती हूँ। इंग्लिश मीडियम वाले, हाँ खोलो बेटा, फिर बताना मुझे। 1 मिनट मैं रुक जाती हूँ। यस मैम, मिल गया ना? तो वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पॉइलेज ऑफ फूड, ठीक है? तो the fishy odor in butter is caused by Oidium lactis. मतलब Oidium lactis is a fungus and the fishy odor in butter is caused by Oidium lactis and Torula spherica fungus, Mucor, Aspergillus, Penicillium and Neurospora cause spoilage of bread. तो मैंने क्या बताया? The fungus called as Penicillium, Neurospora, they cause spoilage of bread. तो मिल गया ना आपको? आप बेटे किसकी बात कर रहे हैं हिंदी में? पेनिसिलियम, राइजोपस,
नाइग्रिकेंस, राइजोपस, नाइग्रिकेंस एवं ईस्ट के द्वारा साग सब्जियां सड़ जाती हैं और खाने योग्य नहीं रहती। इसी प्रकार विभिन्न फलों जैसे आम, अंगूर, केला एवं संतरे पर एस्परजिलस 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 बोट्रियो डिप्लोडिया ईस्ट ईस्ट एक है ग्लियोस्पोरियम एवं पेनिसिलियम की अनेक प्रजातियां संक्रमण कर इनमें सड़न एवं धब्बे या चकत्ते उत्पन्न कर देती हैं। एक मिनट बेटा, शायद शेयर नहीं हो पाया आपके साथ, है ना? अब मैं शेयर कर देती हूँ, एक मिनट शेयर हो जाएगा ये। हाँ, इसमें आप देखना शेयर हो रहा है ना। हाँ, तो क्या बताए थे, विभिन्न फलों जैसे आम, अंगूर, केला एवं संतरे पर एस्परजिलस एक फंगस है, बोट्रियो डिप्लोडिया ईस्ट ग्लियोस्पोरिया एवं पेनिसिलियम की अनेक प्रजातियां संक्रमण कर इनमें सड़न, रोटिन एवं धब्बे या चकत्ते उत्पन्न कर देती हैं। इस वजह से ये फल खाने योग्य नहीं रहते। दूसरी फंगस है एस्परजिलस ग्लाउकम और नेक्स्ट है न्यूरोस्पोरा साइटोफिला एंड न्यूरोस्पोरा क्रासा सेक्रोमाइसिस एवं म्यूसिडो इत्यादि कवक ब्रेड, डबल रोटी को संदूषित कर इनमें विषालुता उत्पन्न कर देते हैं। मतलब द ब्रेड बिकम्स कंटेमिनेटेड बाय द फंगस कॉल्ड न्यूरोस्पोरा क्रासा सेक्रोमाइसिस म्यूसिडो। मतलब these aspergillus glaucum saccharomyces they contaminate the bread and so the bread also becomes toxic. मतलब aspergillus glaucum, neurospora cytophila, neurospora crassa, saccharomyces and mucido इत्यादि कवक डबल रोटी ब्रेड को संदूषित कर इसमें विषालुता मतलब टॉक्सिसिटी उत्पन्न करते हैं। तो विभिन्न अनाजों एवं खाद्यान्नों जैसे गेहूं, जौ, चावल, बाजरा एवं जई में संग्रहण तथा भंडारण के दौरान विभिन्न कवक जैसे अल्टरनेरिया, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, फोमा एवं कर्वुलेरिया इत्यादि इनको संदूषित कंडेमनेट करते हैं। इनसे कवक विषों या माइकोटॉक्सिन्स का स्राव होता है। तो मतलब कौन से ऐसे कवक हैं जिनसे माइकोटॉक्सिन्स का सिक्रीशन होता है? तो some of the fungi like Alternaria, Aspergillus, Penicillium, Phoma, they secrete the mycotoxins, and when these fungi secrete the mycotoxins, they contaminate the wheat, rice, बाजरा, ठीक है। और जिससे क्या होता है, जिससे ये मनुष्यों के ही नहीं बल्कि जानवरों के भी खाने के लायक नहीं रहते। तो इन विषालु पदार्थों मतलब माइकोटॉक्सिन्स के कारण मनुष्यों एवं जानवरों में कई प्रकार के रोग भी पैदा हो सकते हैं। तो एस्परजिलस की विभिन्न प्रजातियों द्वारा उत्पन्न जैव विष एफ्लोटॉक्सिन इसी प्रकार के कवक विष का उदाहरण है। मतलब one of the fungus is aspergillus, and this aspergillus fungus it produces a toxic substance, and this toxic substance which is produced by aspergillus is called as aflatoxin or aflotoxin. तो पेनिसिलियम aspergillus के कुछ प्रजातियों के द्वारा पेट्यूलिन नामक जैव विष पैदा होता है जो कैंसर उत्पन्न करता है। मतलब penicillium produces a toxic substance called as petulin, and because of the petulin, cancer is caused in the human beings. तो इसी प्रकार से अर्गट द्वारा भी विषालु पदार्थ पैदा होते हैं। इनसे उत्पन्न विकार अर्गट विषालुता, अर्गट पॉइजनिंग कहलाते हैं। और कवक विषालुता का एक अन्य उदाहरण खुम्बी एवं गुच्छी विषाक्तता, मशरूम एंड मॉरल टॉक्सिसिटी भी उल्लेखनीय है। इसी प्रकार हेलबेला जैसी कुछ खुम्बियां विषैली होती हैं। यदि इनको गलती से खा लिया जावे तो स्वास्थ्य के लिए भी घातक होती हैं। Now we will talk about the
विषैले कवक, पॉइजनस फंजाई। तो कौन कौन सी ऐसी पॉइजनस फंगस है जो कि विषैली है? तो पहले मैं थोड़ा इंग्लिश में बता देती हूँ, आपको अब तो मिल ही गया। मतलब some of the storage diseases of the fruits caused by fungi. So one of the diseases, soft rot of potato is caused by the fungus Rhizopus, and another disease is aspergillus rot of apple. This aspergillus rot of apple is caused by the fungus Aspergillus fumigatus, and other diseases, Alternaria rot of banana. This disease is caused by Alternaria alternata, and another disease is Alternaria rot of apple. This disease, Alternaria rot of apple, is caused by the fungus Alternaria species. The fungi responsible for post-harvest decay of fruits, vegetable and pulse and cereal grains include Aspergillus, Penicillium, Fusarium, Alternaria and Rhizopus. So now we will talk about the mycotoxicosis. So पहले मैं ये भी बताती हूँ बेटा, one of the disease आप ये देख लो, human and animal diseases which are caused by fungi. Human and animal diseases caused by fungi. One of the diseases aspergillosis. So this aspergillosis disease infects the skin, ear, lungs, and it is caused by the fungus Aspergillus flavus and Aspergillus fumigatus. इसी प्रकार है athlete foot disease. Athlete foot disease. The affected part is foot and skin, and the athlete's foot disease is caused by the fungus Tinea rubrum. Next disease is blastomycosis. So in blastomycosis, the affected part is skin, central nervous system, and the fungus is Streptococcus neoformans. Now I talk in English about mycotoxicosis. What is mycotoxicosis? So many fungi infect the food and their products during the storage and produce toxins. The use of such products causes mycotoxicosis in humans. So aflatoxins produced by various species of Aspergillus cause nausea, vomiting, weakness, and loss of appetite and interest in food due to the toxic effects. कहने का मतलब है बेटा, aflatoxins is produced by the fungus Aspergillus. Aspergillus fungus कौन सा poisonous पदार्थ secrete करती है, उसका नाम है aflatoxins. Because of the secretion of aflatoxin, ये क्या करता है? It causes vomiting, nausea, weakness, and the loss of appetite. भूख भी नहीं लगती, and interest in food due to its toxic effects. So the toxin, one of the toxin is पेट्यूटिन. पेट्यूटिन नामक है एक टॉक्सिन का नाम क्या है? पेट्यूटिन. It is secreted by Penicillium and Aspergillus in fruits, juices, and bread. And this toxin, which is called as पेट्यूटिन, causes cancer. ये जो टॉक्सिन है, जिसको कि हिंदी में बताया था, ये क्या करती है? मनुष्यों में क्या करती है? कैंसर कॉज करती है. तो टॉक्सिन का नाम है पेट्यूटिन. ये मनुष्यों में, या इसमें लिखा है बेटा पेट्यूलिन है, इंग्लिश की बुक कह रही है पेट्यूटिन, तो पेट्यूटिन है. पेट्यूटिन टॉक्सिन is secreted by Penicillium and Aspergillus and it causes cancer. So now sclerotia of claviceps produce ergotamine, ergotinine, and salicylic acid, which are toxic, and they intake cause ergotism diseases. So हिंदी में भी एक स्लाइड में अभी शेयर कर देती हूँ आपके साथ, वही वाली. इसके आगे भी चलते हैं. मैं बताई थी आपको विषैले कवक. विषैले कवक कौन कौन से हैं? पॉइजनस फंगस खत्म ही होने वाला है. हेलबेला तो अपन सुनते हैं. हेलबेला के अतिरिक्त छत्रक मशरूम समूह के कुछ मांसल कवकों में अत्यंत विषैले पदार्थ उपस्थित होते हैं.